Hello, learners. This is your trainer and guide Aishwarya Seth, welcoming you all to India's first social and revolutionary educational platform of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where we are providing you complete coachings of all India competitive exams absolutely free of cost. We are giving you complete coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, Mastercard, NTT, ETT, BEd, MEd, and even much more. So, this is a complete educational hub for the students all over India who are aspirants for cracking these exams and want to build their careers in the same streams. Our mission here is to impart 100% free quality education throughout India, but especially to those students who can't afford these courses due to their financial crisis or any other reason. So students, subscribe this channel as this channel is purely a social and charitable educational platform where every complete course is 100% free of cost. So in UGC preparations, I had already taught you the full-fledged 4 topics, that is research aptitude, teaching aptitude, communication and information and communication technology, along with their previous year question answers, practices and discussions. So I started this channel on 1st April 2020 and these 4 total topics are completed till now. Now the 5th topic, that is higher education, which is actually the 10th unit of UGC paper 1, is currently going on this channel, where I am covering each and every topic of higher education in a chronological manner. So in today's presentation I will cover the value education and environmental education part 2, right? So this is part 2. जो पार्ट 1 है इसका, इस प्रेजेंटेशन का, उसमें मैंने फुल फ्लेज वैल्यू एजुकेशन आपको कंप्लीट करवाई है कल येस्टरडे, ठीक है जी. सो ये जो फुल फ्लेज टॉपिक है वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये फुल फ्लेज मैंने 2 पार्ट्स में जो है वो पढ़ाना है. उसके लिए जो पार्ट 1 है वो येस्टरडे मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें फुल डिटेल में वैल्यू एजुकेशन जो है वो पेपर के पर्सपेक्टिव से डिटेल में करा दी है मैंने. और पार्ट 2 में आज मैं लेके आई हूँ एनवायरमेंटल एजुकेशन. तो आज का पार्ट देखने के बाद ये पूरा फुल फ्लेज टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. और ये टॉपिक जो है अपडेटेड सिलेबस में अपडेटेड टॉपिक है, ठीक है जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब से ये टॉपिक जो है ऐड ऑन हुआ है यूजीसी के सिलेबस में पेपर 1 में, तब से हमेशा हर अटेम्प्ट में जो है इसका क्वेश्चंस जो है हर एक सेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं इसी टॉपिक्स में से. सो आज का और कल का येस्टरडे का जो पार्ट 1 इस टॉपिक में से अगर आप दोनों प्रेजेंटेशंस देखोगे तो यू विल मेक इट श्योर कि आपके 2 मार्क्स जो है वो इंश्योर हो चुके हैं, ठीक है जी. चलिए स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन. So, environmental education refers to organized efforts to teach how natural environments function, and particularly how human beings can manage behavior and ecosystems to live sustainably. It is a multidisciplinary field integrating disciplines such as biology, chemistry, physics, ecology, earth science, atmospheric science, mathematics, geography, etc. कहने का मतलब है कि environmental education ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से ह्यूमंस जो हैं वो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह से इन्वायरमेंट जो है वो हम ह्यूमंस को और सारे के सारे क्रिएचर्स को इम्पेक्ट करता है. तो इट मीन्स इट इज़ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द एनवायरमेंट as well as the different organisms like humans, animals, plants and each and every creature, insects, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है जी. तो ये दोनों का क्या है, ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है जी. हमें भी इन्वायरमेंट इम्पेक्ट करता है, ठीक है जी, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, ठीक है जी. जैसे इकोलॉजी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स हैं, गैसेस हैं, डिफरेंट सराउंडिंग्स हैं, ठीक है जी. ये सारी चीज़ें हमें इम्पेक्ट करती हैं, ठीक है जी. और हमारी जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है जी, वो इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट करती है. इसी तरह से जो है इन्वायरमेंट आजकल जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी हद तक जो है वो डिप्लीट भी हो रहा है. सो ये एक प्रॉपर फुल फ्लेज स्टडी है किस तरह से इन्वायरमेंट हमें इफेक्ट करता है और हम किस तरह से इन्वायरमेंट को जो है इम्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी. सो नेक्स्ट क्या है, यूनेस्को की अगर वर्डिंग देखें, यूनेस्को ने बोला है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ अ वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गोल्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. अब ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो कंसेप्ट है इसका जो मेन बेस है वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही है. इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों हम इम्पार्ट करते हैं, क्यों जो है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं इस एजुकेशन को, ताकि हम अपना पूरा का पूरा जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें.
ठीक है जी, इट इज़ नॉट अ सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस बट लाइफ लॉन्ग इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी। ठीक है जी, सो ये बिल्कुल लाइफ लॉन्ग, जब तक ये जहान रहेगा, दुनिया रहेगी, तब तक ये इन्वायरमेंट भी रहेगा और इन्वायरमेंट में हम रहेंगे। और हम जब तक रहेंगे इन्वायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए हमें भी, नहीं तो ये क्या है, धीरे धीरे डिप्लीट होगा और इसका जो है सर्कमस्टांसेस हमको फेस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, सो इट मीन्स एजुकेशन टुवर्ड्स प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज़। सो एक ये फुल फ्लेज सब्जेक्ट है, फुल फ्लेज जो है ये डिसिप्लिन है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, जिसको हर एक को जो है जैसे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हायर इंस्टीट्यूट्स में, हर तरफ जो है वो पढ़ाया जाता है एज अ कंपल्सरी एंड वेरी वाइटल सब्जेक्ट फॉर द स्टूडेंट्स, कि आगे जाके जो है अपने इन्वायरमेंट को जो है वो कम्प्लीटली सुरक्षित रख सकें। ठीक है जी, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, क्यों इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्यों हम जो है इम्पार्ट करते हैं, क्यों ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन का एक जो डिसिप्लिन है ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, सबसे पहले क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करता है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या करती है, स्टूडेंट्स के जो है स्टूडेंट्स के अंदर, लर्नर्स के अंदर, या जो भी हम जैसे आप जैसे जितने भी लर्नर्स हैं या टीचर्स हैं या कुछ कोई भी जो है पर्सन है, उसको अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हमें जो है अपने इन्वायरमेंट को डिप्लीट या पल्यूट बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं करनी जो हजार्डस हो इन्वायरमेंट के लिए। तो ये अवेयरनेस है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको जो है लेसन करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए ये अवेयरनेस क्रिएट करता है एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, जिसको इम्पार्ट करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, सोसाइटी में। नेक्स्ट क्या है, नॉलेज। अब अगर हमें इन्वायरमेंट की प्रॉपर नॉलेज होगी, क्योंकि जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है उसको हम प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको हम इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते। तो प्रॉपर जो है ये एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन लेके क्या क्या एक्टिविटीज़ कैसे इम्पेक्ट करती हैं इन्वायरमेंट को, और कौन सी एक्टिविटीज़ डूज एंड डोंट्स, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, ये सारी नॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, एंड थर्ड इज़ एटीट्यूड्स। और अगर हम नॉलेज ले लेते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन में, जो है हम काफ़ी कुछ जान लेते हैं, ठीक है जी, तो उसमें हमारा एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। कौन सा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि हमने अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ही करना है। अब जैसे आजकल क्या है, बहुत सारे कैंपेन्स चल रहे हैं अफॉरेस्टेशन के, एक प्लांट जो है वो सबको लगाना है, ये क्या है, ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही है। और ये हमारे एटीट्यूड्स में आ चुका है, क्योंकि हमें पता है, अब हर कोई ये जानता है कि अगर हमने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की इन्वायरमेंट को जो है डिप्लीट करने के लिए, तो ये इन्वायरमेंट हमारे लिए डिसीजेज लेके आएगा। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये मेन ऑब्जेक्टिव्स है इन्वायरमेंट एजुकेशन को पढ़ाने और पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्या है, स्किल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अब इससे क्या होता है, टू हेल्प सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स टू डेवलप स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग डिस्क्रिमिनेशंस इन द फॉर्म, शेप, साउंड, टच, हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, फर्दर टू डेवलप एबिलिटी टू ड्रॉ अनबायस्ड इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन्स। कहने का मतलब ये हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है कि हम किस तरह से अपनी जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास जो है अवेलेबल एक्टिविटीज़ हैं या जो भी हम करना चाहते हैं, उसको किस तरह से रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें और उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके हम एनवायरनमेंट को किस तरह से सस्टेनेबल बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले जनरेशन्स भी उसको जो है वो इन्वायरमेंट को उनको आने वाले जनरेशन्स को भी इन्वायरमेंट जो है वो डिप्लीट होकर ना मिले, स्वच्छ इन्वायरमेंट में मिले। तो ये हमारी स्किल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। एंड लास्ट इज पार्टिसिपेशन। और हम सबको एज ए सोशल ग्रुप्स जो है, इंडिविजुअल्स को भी, सोसाइटी के सारे मेम्बर्स को ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वायरमेंटल जो है कंपेन्स में या इन्वायरमेंटल गुड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। सारे पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, ये सबका जो है इंडिविजुअलाइज्ड, सबका जो है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इंडिविजुअलाइज नहीं है। तो सबको मिलकर इन्वायरमेंट को जो है वो क्लीन और प्रोडक्टिव रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं कि ह्यूमंस की पार्टिसिपेशन, उनकी नॉलेज, उनकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनकी अवेयरनेस है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन को पढ़ाने के और पढ़ने के। नेक्स्ट चलते हैं, पर्पस क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, कंसर्न विद दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच आर मोर डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्स इंटरेक्शन विद बायोफिजिकल इन्वायरमेंट एंड इट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेक्शन। मैंने सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले ये बोला था कि इंटरेक्शन है, इंटरडिपेंडेंस है मैन की इन्वायरमेंट के साथ एंड वाइस वर्सा, इन्वायरमेंट की मैन के साथ।
तो ये सब चीज़ें हैं, ये पर्पस है एनवायरमेंटल एजुकेशन को जो है वो पढ़ाने का, इसके डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स को, एस्पेक्ट्स को, क्राइटेरियंस को समझने का, ताकि हम क्या करें, अपने इन्वायरमेंट को अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने इन्वायरमेंट को अपने ही लिए जो है वो क्लीन रखें, ताकि हमें कोई भी डिसीजेज़ या कोई भी बैड इम्पैक्ट्स हमारे हेल्थ के ऊपर ना आए। ठीक है जी। सो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है पर्पस? वन ऑफ द मोस्ट ग्लेरिंग प्रॉब्लम्स विच द वर्ल्ड फेसेस टुडे इज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है नेचर को, एनवायरमेंट को। कौन पोल्यूशन कर रहा है? ये हम लोग ही पोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम ये बोलें कि डिफरेंट एनिमल्स कर रहे हैं, कोई एनिमल्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। कोई और क्रिएचर कर रहा है, नहीं कर रहा। बेसिकली 99.9% जो है वो ह्यूमंस एक्टिविटीज़ का ही हाथ है इन्वायरमेंट को डिप्लीट और जो है वो डिग्रेड करने में। सो इसको जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पर्पस क्या है पढ़ाने का, कि जो जागरूकता इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इम्पार्ट करके डिफरेंट डिफरेंट सबके माइंड्स में जो है वो दी जाए। इससे क्या है, कोई भी पर्सन जो है कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कभी भी इन्वायरमेंट को डिप्लीट या पल्यूट करने की कोई भी ऐसी गतिविधि या एक्टिविटी ना करे। सो ये मेन पर्पस है। ठीक है जी। सो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिटिगेट करना इसका मेन पर्पस है। नेक्स्ट क्या है? इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट द ग्रास रूट लेवल इज टू सक्सीड इन मेकिंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स नेचर ऑफ द नेचुरल एंड built environments. Further, to acquire the knowledge, values, attitudes, practical skills to participate in a responsible and effective way in anticipating the solving social problems and in the management of quality of environment. कहने का मतलब वही बार बार की जो है, बार बार एक ही चीज़ आती है कि नेचुरल इन्वायरमेंट्स को किस तरह से हमने जो है वो सेव करके रखना है, संजो के रखना है। ठीक है जी। कोई भी इस तरह की जो है एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी जिससे इन्वायरमेंट डिप्लीट हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, और ये सब चीज़ें हमें ग्रास रूट लेवल से ही सीखनी है। ठीक है जी। अगर हम ये कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि आप जो है वो ट्री लगाओ, तो हमें खुद भी ट्री लगाना चाहिए। अगर हम किसी को रोक रहे हैं कि आप पोल्यूशन ना करो, तो उससे पहले हमें खुद जो है पोल्यूशन नहीं फैलाना है। सो अपने आप को भी किसी दूसरे को कहने से पहले या इम्पार्ट एजुकेशन करने से पहले अपने में एप्लीकेबिलिटी ला करके फिर दूसरों को जो है हम रिफ्लेक्शन दे सकते हैं अपनी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? दिस इज़ एनवायरमेंटल एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। ठीक है जी। ये स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है स्कूल्स में क्या है, पहले प्राइमरी लेवल पे, फिर सेकेंडरी लेवल पे, फिर हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाया जाता है, फिर आगे कॉलेज में जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एनवायरमेंटल एजुकेशन कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती है। ये जो है ये एक सो ऑन प्रोसेस है जो हर लेवल पे, हर एक स्टूडेंट को, हर एक लर्नर को एक कंपल्शन के तौर पे पढ़ाया जाता है, ताकि कोई भी पर्सन जो है वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इन्वायरमेंट को डिप्लीट ना करे। तो ये सारे पर्पसेस हैं। नेक्स्ट क्या है? एम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज टू क्लियरली to show the economic, social, political and ecological interdependence of the modern world in which decisions are actions by different countries have been international repercussions. हाँ, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन सिर्फ एक कंट्री का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, या कुछ कंट्रीज़ का क्राइटेरिया नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड क्राइटेरिया है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। बिकॉज अगर इंडिया में इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है जी, इन्वायरमेंट को एनहांस करने के लिए, उसकी ब्यूटिफिकेशन को, नेचुरल जो चीज़ों को एनहांस करने के लिए इतनी सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं, और ऑन द अदर हैंड जो बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज़ है, फॉर एग्जाम्पल चाइना है या कोई और कंट्री है, वो अपना इन्वायरमेंट जो है वो डिप्लीट करने पर जो है वो तुले हुए हैं, तो उससे क्या होगा, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर जो सही कर रहा है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो मतलब ये वर्ल्ड वाइड रिपरकशंस होती हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन की, कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह की मीन्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन की। ये नहीं कि कोई एक जो देश में हो रहा है दूसरे देश में नहीं हो रहा, तो अगर जिसमें नहीं हो रहा वो जिसमें हो रहा उस पर भी जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नेगेटिव डालेगा। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया रखें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का। सो ये सब चीज़ें होती हैं। और इसका एग्जांपल आजकल जो चल रहा है कोरोना वायरस, अब ये इंडिया में तो ओरिजिनेट हुआ नहीं है, किसी और कंट्री में ओरिजिनेट हुआ नहीं है। ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है? वुहान, चाइना में। उसका एक कंट्री का ये जो बैक्टीरिया है या वायरस है वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो फैल गया है। तो ये भी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ कि इन्वायरमेंटल
जो प्रोटेक्शन है वो किसी एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो सारे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है जी। सो वी आर इंटरडिपेंडेंट, एवरी कंट्री इज इंटरडिपेंडेंट रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। सो ये सब चीज़ें हैं। सो स्कोप क्या है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन बेसिकली क्या क्या जो है डिफरेंट कौन कौन सी डायमेंशंस हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, वो स्कोप में हम करते हैं। 3 तरह की बेसिक डायमेंशंस हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स। ये जितने भी मैं आपको अभी टॉपिक्स करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पेपर्स जो हैं, पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है जी। कौन सा एस्पेक्ट जो है या कौन सी डायमेंशन है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है जी। सो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये कौन सी डायमेंशन है, ठीक है जी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ये सब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में आते हैं। फिर दूसरा क्या आता है, फिजिकल एस्पेक्ट। इस फिजिकल एस्पेक्ट में क्या है, ये 2 तरह के जो है वो बाइफिकेशंस में डिवाइडेड है। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू नेचुरल एस्पेक्ट्स एंड द मैन मेड एस्पेक्ट्स। जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एस्पेक्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन का, उसमें भी 2 बाइफिकेशंस हैं, एक तो है मैन मेड, एक है नेचुरल। सो एयर, वाटर, लैंड, क्लाइमेट are included in the natural physical aspects. Likewise, man-made physical aspects cover all the man-made things such as roads, buildings, bridges, houses. तो ये आपको समझ आ गया कौन सा एस्पेक्ट कहाँ है, कौन सी डायमेंशन के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। सो अगर हम बात करें, एयर है, वाटर है, लैंड है, क्लाइमेट है, ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं, बट क्या हैं, ये अबायोटिक एस्पेक्ट्स है। बायोटिक तो लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है जी। नेचुरल में भी 2 तरह के डायमेंशंस होती हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो नेचुरल में अगर बायोटिक की बात करें तो बायोटिक में है मतलब जिसमें जान होती है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे बायोटिक है। और अबायोटिक कौन से हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसे एयर है, वाटर है, क्लाइमेट है, लैंड है, ये सारे अबायोटिक हैं। और ह्यूमन मेड में या मैन मेड में कौन से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, रोड्स बनाई हैं हमने, डैम्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, हाउसेज बनाए हैं, ये सब चीज़ें जो है मैन मेड में आ जाती है। बट ये सारे एस्पेक्ट्स कहाँ पे आते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्या है, सोशल कल्चरल एस्पेक्ट। सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स आर द मैन मेड सोशल प्रैक्टिसेस, rules, laws and other religious places etc. Human beings are created them with their own effort. सो सोशल कल्चर का एस्पेक्ट क्या है इन्वायरमेंट में, कि जो हमारा कल्चर है, हमारा सोसाइटल एस्पेक्ट है, सोसाइटल प्रैक्टिसेस है, हमने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है जी। एंड ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, सोशल कल्चर एस्पेक्ट में। तो ये सब तीन डायमेंशंस थी, 3 डिफरेंट स्कोप से टोटल इन्वायरमेंटल एजुकेशन के, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अब क्या है, दिस इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, कि रेगुलेटरी स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। सो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडन कर देती हूँ कि अभी आपने क्या देखा कि ऑब्वियसली 2 गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका मेन जो है MOEF, जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सबसे पीक और हेड एनवायरमेंटल एजुकेशन या एनवायरनमेंट को रेगुलेट, गवर्न और कंट्रोल करने में जो मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कौन सी है, MOEF। इसकी फुल फॉर्म भी आई थी MOEF की। तो MOEF सेंट्रल लेवल पे सबसे हेड होती है, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद नीचे उसकी आती है CPCB। CPCB का मतलब होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये एक जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या फ्रेमवर्क है, सबसे बड़ा स्टेट गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, और उसके नीचे क्या है, SPCB मतलब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और बाद में क्या आ जाते हैं, रीजनल ऑफिसेज। तो ये सारे के सारे, ठीक है जी, ये सारे के सारे जो भी आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख रहे हो, ये सारे के सारे जुटे हुए हैं कि इन्वायरमेंट को गवर्न करने में, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ बनाने में, लॉज बनाने में, ठीक है जी, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज सब कुछ यही बनाते हैं, गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए। सो ये सारी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। सो आगे चलते हैं।
सो अब अभी आपने क्या देखा, MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि MOEF वॉज एस्टैब्लिश इन 1985 टुडे, विच इज़ द अपेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इन द कंट्री फॉर रेगुलेटिंग एंड इंश्योरिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लेज डाउन द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द सेम। सबसे हाइएस्ट जो मेन अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो MOEF ही है, जो 1985 में एस्टैब्लिश हुई थी एज एन अपेक्स बॉडी। मीन्स बिल्कुल हेड बॉडी है, जिसमें क्या है, कोई भी रूल रेगुलेशन लीगल प्रोसीजर है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, ये सब कुछ यही बनाती है और इसके अंडर सारे काम चलते हैं। Since the 1970s, a number of environmental legislations have been put in the place. So the MOEF and the Pollution Control Board, that is CPCB and SPCB, together form the regulatory and administrative core of the sector। मतलब यहाँ पे मेन अगर environment प्रोटेक्शन एजेंसीज या फिर अपेक्स बॉडीज़ देखी जाए तो सबसे टॉप मोस्ट पे है MOEF और उसके अंडर जो है वो CPCB और SPCB आ रही हैं। सो ये एक थोड़ा सा मैंने आपको फ्रेमवर्क समझाया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर क्या है, सम इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशंस फॉर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एज फॉलोज। ठीक है जी, अब क्या करना है, हमने डिफरेंट रेगुलेशंस देखनी है, स्कीम्स देखनी है, एक्ट्स देखने हैं जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बनाए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है जी, बहुत सारे हैं, लेकिन एनवायरनमेंट एज एन हायर एजुकेशन में जो एनवायरनमेंट का जो कंसेप्ट है, एनवायरमेंटल एजुकेशन का कंसेप्ट है हायर एजुकेशन में, उसमें ये जो है ये 5 तरह के इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन जो हैं आज हम कवर करने जा रहे हैं। बाकी के जो एक्ट्स हैं, प्रोटेक्शन लेजिस्लेशंस हैं, वो हम करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है जी, जब नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, हायर एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, फुल फ्लेज यूनिट लेकर के आएंगे। वो यूनिट कौन सा होगा, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो उसमें प्रॉपर हम एनवायरनमेंट को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। लेकिन हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से एनवायरनमेंट को हमने इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वही इसके लिए जो है मोर देन इनफ है। ठीक है जी, हायर एजुकेशन के अंडर तो आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बार मर्जी आप मेरी वीडियो देखिए और जो है रिकॉल करके बार बार जो है इसको सुनिए और पढ़िए और अपने माइंड में जो है इसको बिठा लीजिए। ठीक है जी, तो इसमें 5 तरह के हम आज एक्ट्स पढ़ेंगे। सो NGTA, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, द एयर Prevention and Control of Pollution Act 1981, the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974, the Environmental Protection Act 1986, the Hazardous Waste Management Regulations etc. तो ये 5 तरह की important legislations which are very very important, इसमें से questions 101% आता है, वो हम डिटेल में करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सी है, अभी आपको मैंने बताया, सबसे फर्स्ट नंबर पे है द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, क्या ऑब्जेक्टिव था, मैं पूरा पढ़ के बताऊंगी आपको। ठीक है जी, आप सुनते जाइएगा, एज इट इज़ इसको लर्न करना है बिकॉज ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, so NGT Act has been enacted with the objective of providing the establishment of a national green tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forests and other natural resources, including the enforcement of any legal right relating to environment and giving relief and compensation for damages to persons and property and for matters connected herewith और इंसिडेंटल देयर टू। सो ये क्या है, एक ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ठीक है जी, जिसमें हर तरह का जो अगर कोई भी इन्वायरमेंट को डिप्लीट कर रहा है या इन्वायरमेंटल जो है किसी को डैमेज कर रहा है, उसको जितनी वो डैमेज उसने की है या डिप्लीशन की है या इन्वायरमेंटल को जो है प्रोटेक्शन को खारिज करने की कोशिश की है, कोई भी ऐसी माल प्रैक्टिस की है, तो ये ट्रिब्यूनल के अंदर जो है उसकी जस्टिफिकेशन होती है और उसको पेनल्टीज पड़ती हैं और कई बार प्रिजन भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए, उनको सेव एंड सिक्योर रखने के लिए ये जो नेशनल NGT जो है एक्ट आया था 2010 में। So, and Act received the assent of the President of India on 2nd June 2010 and was enforced by the central government via notification number SO2569E dated 18th October 2010 with the effect from October 18, 2010। ठीक है जी, नोटिफिकेशन कब आई थी, 18 अक्टूबर 2010 को, और इन्फोर्समेंट कब हुई थी,
18 अक्टूबर 2010 को सेम डे ही हो गई थी। एन एक्ट emphasizes the establishment of NGT in order to deal with the environmental laws relating to all air and water pollution, Environmental Protection Act, Forest Conservation Act and Biodiversity Act as have been set out. The Biodiversity Act as have been set out in the शेड्यूल 1 ऑफ द NGT एक्ट। ये सारी प्रोविजंस आपने अभी जो पढ़ी हैं, मैंने आपको बताई हैं, ये सब जो हैं इसमें NGT के शेड्यूल 1 में जो हैं वो वहाँ पे मैंशनड है। कौन कौन सी? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NGT इन ऑर्डर टू डील विद द इन्वायरमेंटल लॉज। कौन कौन से इन्वायरमेंटल लॉज? विच रिलेटेड टू द एयर, वाटर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे किसमें हैं? शेड्यूल 1 ऑफ NGT एक्ट। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। किस शेड्यूल में हैं ये सारी प्रोविजन? शेड्यूल 1 ऑफ द NGT एक्ट, राइट। सो ये जो है इसके फैक्चुअल मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो लॉ के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है द एयर एक्ट 1981, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है जी। एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अमेंडमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स विद अ व्यू टू कैरिंग आउट द अफोर्सेड पर्पसेस। अब यहाँ पे जो एक्ट है इसका नाम ही एयर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये क्या है? एयर और वाटर की, ठीक है जी। यहाँ पे दो तरह के जो बेसिकली, वैसे जो बेसिकली एस्पेक्ट है वो एयर का ही है, ठीक है जी। टू एक्ट प्रोवाइड द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब कोई भी ऐसी जो है हजार्डियस एक्टिविटी कोई करता है एयर को पोल्यूट करने की, पोल्यूशन फैलाने की, तो उसको जो है ये बिल्कुल उसको पनिश करता है, ठीक है जी। सो इसका यही काम है कि सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो है हर तरह का एयर प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया जाए और उसको जो है गवर्न करने की, ठीक है जी। टू काउंटर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वर एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट। तो ये आपने देखा होगा एयर स्टैंडर्ड्स भी जो हैं गैसेस के, जो डिफरेंट गैसेस के, डिफरेंट एयर्स के और एयर पोल्यूटेंट्स के जो इंडेक्सेस हैं या फिर स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, वो मेंटेन किए गए हैं, बनाए गए हैं, वो इसी प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। दिस एयर एक्ट seeks to combat air pollution by prohibiting the use of polluting fuels and substances as well as by regulating the appliances that give rise to air pollution. So air act empowers the state government and after consultation with the SPCBs, right, State Pollution Control Board, to declare any area or areas within the state as the air pollution control area or areas under the act. Establishing or operating any industrial plant in the pollution control area requires consent from the SPCB. So SPCB are also expected to test the air in air pollution control areas, inspect pollution control equipments and manufacturing processes. तो कहने का मतलब है कि पूरा कंप्लीट फुल फ्लैज जो है एयर पोल्यूशन का क्राइटेरिया जो है वो यही देखता है। कोई भी इंडस्ट्रियल प्लांट जो है अगर पोल्यूशन कर रहा है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो एयर में जो है वो छोड़ रहा है, या कोई भी इस तरह से जो गतिविधि हो रही है एयर पोल्यूशन का, कोई भी इस तरह से कोई भी जो है एयर पोल्यूशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे जो है वो कंट्रोल करता है। और जिन एरियाज़ में पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है उन एरियाज़ को बार बार जो है चेक करता है, इंस्पेक्ट करता है और वहाँ पे भी जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की हर एक कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं इसकी जो एयर प्रोटेक्शन इसको कह सकते हैं कि एयर एक्ट 1981 की प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं द वाटर एक्ट 1974। ये देखिए एक्ट का नाम और कब लॉन्च हुआ था, वो ईयर का नाम आपको पता होना चाहिए और उसकी ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है जी। ये इन पांचों के ऊपर जो मैं अभी आपको रेगुलेशंस करवा रही हूँ, लेजिस्लेशंस करवा रही हूँ, ये 5 करवाऊंगी, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 has been enacted to provide for the prevention and control of water pollution and to maintain or restore wholesomeness of water in the country. वाटर की डिप्लीशन को रोकने के लिए, वाटर की इम्प्रूवमेंट, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है जी, और वाटर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जितने भी एफर्ट्स जो हैं या जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो यही एक्ट के अंडर जो है वो बनती हैं। इट फर्दर प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन विद अ व्यू टू कैरी आउट द अफोर्सेड पर्पसेस। द वाटर एयर प्रोहिबिट्स द डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द वाटर बॉडीज बियॉन्ड अ गिवन स्टैंडर्ड। एक लिमिट होती है जिस लिमिट तक जो है वाटर में आप जो है कोई भी
जैसे पोल्यूटेंट है कुछ भी है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसके अगर ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली ये इन्वायरमेंट को डिप्लीट करेगा और आपको जो है उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी और पेनल्टीज़ जो हैं वो देनी पड़ेंगी। द वाटर एक्ट प्रोहिबिट्स द डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द वाटर बॉडीज बियॉन्ड अ गिवन स्टैंडर्ड एंड लेज डाउन पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। ठीक है जी। एट द सेंटर द वाटर एक्ट हैज़ सेट अप बाय द CPCB, सेंटर लेवल पे CPCB देखता है, विच लेज डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। एट द स्टेट लेवल SPCB फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द CPCB एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सो ये सब जो है उसका क्राइटेरिया है कौन सा, वाटर एक्ट 1974। नेक्स्ट क्या है, और ये अभी चलता ही आ रहा है वाटर प्रोटेक्शन एक्ट। सो फर्दर द वाटर सेस एक्ट वॉज इनेक्टेड। अब एक नया इसी के अंतर्गत एक और नया एक्ट बना, कौन सा, द वाटर सेस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1977 टू प्रोवाइड फॉर द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ अ सेस ऑन वाटर कंज्यूम्ड बाय पर्सन्स ऑपरेटिंग एंड कैरिंग ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अब आपने भी देखा होगा बिजली का बिल तो हर घर में आता है, लेकिन वो एक नॉमिनल सा होता है, ठीक है जी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल या बड़े बड़े जो यूनिट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके लिए अलग तरह का जो है वो जो भी जैसे कि रेवेन्यू है या कलेक्शन ऑफ सेस, मतलब जितनी भी उससे जो है बिल अमाउंट लेनी है, सेस लेना है, तो वो भी वो डिसाइड करता है। सेस इज कलेक्टेड विद अ व्यू टू ऑगमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्ट 1974। द एक्ट वॉज लास्ट अमेंडेड इन 2003। और लास्टली इसको, क्योंकि हर एक्ट में अमेंडमेंट्स होती हैं, और इस एक्ट में लास्ट में जो है अमेंडमेंट कब हुई थी, 2003 में। कई बार अमेंडमेंट पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो ओरिजिनल एक्ट है वो इस ईयर में लॉन्च हुआ और उसकी अमेंडमेंट किस ईयर में हुई। तो प्लीज़ ये एक मतलब इसमें लर्न करने का ज़्यादा एस्पेक्ट है, समझने का कम, लेकिन लर्निंग पावर जो आपकी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कौन सा प्रोटेक्ट जो है, कौन सा एक्ट जो है वो क्या आपको जो है गाइडेंस दे रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एक्ट के ऊपर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। So, Environmental Protection Act 1986 provides for the protection and improvement of environment। पूरे के पूरे environment को improve करने का जितना भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एक्ट में जो है वो दी गई है। Environmental Protection Act establishes the framework for studying, planning and implementing long-term requirements of environmental safety and laying down a system of speedy and adequate response to situations threatening the environment. It is an umbrella legislation designed to provide a framework for the coordination of central and state authorities established under the Water Act 1974 and the Air Act. The term environment is understood in very wide term under सेक्शन 2A ऑफ द इन्वायरमेंटल एक्ट। इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 में जो सेक्शन है 2A में प्रॉपर इन्वायरमेंट का जो है एक डिस्क्रिप्शन दी गई है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड करना है। वैसे तो सब कुछ ही आ जाता है इन्वायरमेंट में, ये एक पूरा एम्बिएट है, ये एक पूरा अम्ब्रेला है जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में पूरा का पूरा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के मेजर्स होते हैं। ठीक है जी। सो इट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एज वेल एज द इंटररिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन द वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिज्म कुछ भी नहीं है, जनरल तौर पे चाहे वो लैंड है, एयर है, वाटर है, ठीक है जी, हर तरह का इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो है कवर्ड है। और ये मेजर्स जो है पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें मेजर्स जो हैं दिए गए हैं, और जो वो मेजर्स फॉलो नहीं करता है उसको जो है वो फिर जो है पेनल्टीज़ या फिर उसको जो है जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। सो ये सब चीज़ें हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया कब था, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। सुनिए ध्यान से, जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी, आपने सबने सुनी होगी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है जी, जब राजीव गांधी जी जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उस टर्म के दौरान जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट उसके उस ट्रेजेडी के होने के बाद जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, ठीक है जी। उस ट्रेजेडी में इतना नुकसान हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने ये जो है एक्ट बनाया था, पार्लियामेंट में इसका एक्ट पास किया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है जी।
नेक्स्ट चलते हैं, इसमें क्या क्या है। अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज empowered to take measures necessary to protect and improve the quality of environment by setting standards for the emissions and discharges of the pollution in the atmosphere by any person carrying on industry or activity, regulating the location of industries, management of hazardous waste, protection of public health and welfare। सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कवर हो जाती हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज नोटिफिकेशंस अंडर द एनवायरमेंटल एक्ट for the protection of ecology sensitive areas or issues guidelines for matter under the environmental protection act। ठीक है जी। and in case of any non compliance or contravention of the environmental protection act or of the rules or directions under the said act, the violator will be punishable with imprisonment up to 5 years। ये क्वेश्चन आया हुआ था, तभी मैंने ये जो है साथ में आपको बता दिया है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस करता है या एनवायरनमेंट को डिप्लीट करने का कोई भी इस तरह से एक्टिविटी करता है तो उसको जो है 5 साल की जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और विद अप द फाइन ऑफ ₹1 लाख और विद बोथ। इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी लगी हो सकता है। इन केस ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ सच वायलेशन एंड एडिशनल फाइन अप टू 5,000 एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर और contravention continues after the conviction for the first such failure or contravention will be levied। तो अगर ये सब चीज़ें पनिशमेंट लेने के बाद भी, ठीक है, फाइन भरने के बाद भी सेम एक्टिविटी जो है डिप्लीट करने की कोई भी पर्सन कंटिन्यू रखता है तो उसको पर डे 5,000 रुपया जो है वो फाइन जो है पर डे और एडिशनल लगता जाता है। इफ़ द वायलेशन कंटिन्यूज बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ कन्विक्शन द ऑफेंडर शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। तो ये सारी की सारी जो है आप ये पनिशमेंट क्राइटेरिया है। ठीक है जी। नॉन कंप्लायंस, जब हम एनवायरमेंटल एक्ट को जो है वो ओबे नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट जाके कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें ये जो है वो पेनल्टीज़ और जो है इम्प्रिजनमेंट जो है हमें झेलनी पड़ती है। सो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, लास्ट में क्या है, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस। 5वां नंबर किसका है, hazardous waste management regulations। So it means any waste which by reasons of any physical, chemical, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive characteristics causes danger or is likely to cause danger to health or environment whether alone or with the contact with other waste और substances। मतलब hazardous waste management मतलब किसी भी तरह का अगर कोई भी waste material जो हजार्डस है इन्वायरमेंट के लिए, चाहे वो केमिकल मटेरियल हो, चाहे वो कोई फ्लेमेबल हो, कोई टॉक्सिक मटेरियल हो, या कोई भी इस तरह का फिजिकल मटेरियल हो जो हम इन्वायरमेंट में जो है वो छोड़ रहे हैं या उसको जो है डिस्पर्स कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को डिप्लीट कर रहे हैं, तो ये एक्ट जो है, रेगुलेशंस जो हैं वो हमें जो है उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है अंडर द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस। देयर आर सेवरल legislation that directly or indirectly deal with the hazardous waste management। The relevant legislations are the Factories Act 1948, the Public Liability Insurance Act 1991, the National Environmental Tribunal Act 1995 and the rules and notifications under the Environmental Act। some of the rules dealing with the hazardous waste। so यहाँ पे क्या है, वो ये कह रहा है कि इसके एम्बियट के अंदर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस के अंडर कौन कौन से डिफरेंट जो हैं वो एक्ट्स इसके अंडर ही आ रहे हैं, वो मैंने आपको पढ़ के बता दिए। ठीक है। और साथ में क्या है, कुछ रूल्स जो हैं इस रेगुलेशन के अंदर कुछ रूल्स बने हुए हैं विच आर डीलिंग विद द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। वो रूल्स हम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। 3 तरह के हैं बेसिकली। Hazardous Waste Rules 2008 brought out a guide for manufacture, storage and import of hazardous chemicals and for management of hazardous waste। यहाँ पे 2008 में जो है वो कह रहा है कोई भी import export नहीं करना है ऐसे कोई chemicals का या hazardous waste का जिससे जो है environment deplete हो। दूसरा क्या है, biomedical waste management and handling rules 1998 were formulated along with the parallel lines for proper disposal, segregation, transport etc. of infectious waste। मतलब जैसे बायोमेडिकल, जैसे हॉस्पिटल्स का कोई वेस्ट है, ठीक है जी, मेडिकल जो फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो वेस्ट है, ठीक है जी, वो इस तरह से हमने इन्वायरमेंट में छोड़ना नहीं है, उसको भी जो है वो डिप्लीट करने के अलग अलग सोर्स होते हैं कि किस तरह से इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए हुए हम जो है वेस्ट मटेरियल को जो है वो डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2000। सो एम एट एनेबलिंग म्यूनिसिपैलिटीज़ टू डिस्पोज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन साइंटिफिक मैनर
ये जो एक्ट है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के ऊपर जो है साइंटिफिक मैनर के मतलब कोई भी म्यूनिसिपैलिटी है या कोई भी इस तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई भी हज़ार्डस वेस्ट है उसको किस तरह से साइंटिफिक मैनर में जो है उसको डिस्पोज करना है विदाउट डिप्लीटिंग द एनवायरनमेंट, वो सारी प्रोविजन इसमें हैं। मतलब कहने का मतलब है डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट को डिस्पोज तो करना ही पड़ेगा, विदाउट डिस्पोज वो डिसीज़ का कारण बन जाते हैं। डिस्पोज करने के डिफरेंट साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिक मेथड्स को है उनको अपनाओ, ना कि किसी तरह से भी आप ओपन एनवायरनमेंट में उनको डिप्लीट कर दो। ये कुछ नहीं करना, आपने डिस्पोज करना है, डिफरेंट तरह के वेस्ट को है डिस्पोज करना है, ख़त्म करना है, लेकिन एक साइंटिफिकली मैनर को अपना के अडॉप्ट करके, ताकि जो है उनका डिस्पोजल पूरे इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना करे। तो ये सब रेगुलेशंस हैं हज़ार्डस वेस्ट में। सो ये सारी की सारी रेगुलेशंस जो हैं 5 तरह की मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दी। और एक नोट है इंपॉर्टेंट लास्ट में, क्या है, नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इन द इंटरनेशनल कमिटमेंट्स ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द पार्ट 4A 8 आर्टिकल, ध्यान से सुनिए, द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 4A आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज cast a duty on every citizens of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures. So एक नोट तभी मैंने इंपॉर्टेंट नोट की तरह दिया है इसको। ये इन्फॉर्मेशन है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, सेव करके रखना और सिक्योर करके रखना हमारी सारे सिटीजन्स की, पूरे इंडिया में पूरे सिटीजन्स की जो है वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें हर तरह से कोई भी इन्वायरमेंटल डिप्लीशन की एक्टिविटी नहीं करनी है और हर तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर दी कौन से पार्ट में? 4A पार्ट में। और उसका स्पेसिफिक जो है वो आर्टिकल कौन सा है? 51A। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे इंस्क्राइब्ड हैं? पार्ट 4A आर्टिकल 51A में, जिसमें वो पूरा आपको बता रहे हैं कि कोई किसी तरह की जो एक्टिविटी हमें इन्वायरमेंट को डिप्लीट करने की नहीं करनी है। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर पार्ट 4 आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज स्टिपुलेट्स दैट दी state shall endeavor to protect and improve the environmental and to safeguard the forest and wildlife of the country। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं। फर्दर आर्टिकल आपने कौन सा पढ़ा? 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी स्टेट लेवल पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने और इम्प्रूव करने के लिए जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं पार्ट 4 में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। तो ये एक नोट की तरह, इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह मैंने आपको समझा दिया, ठीक है जी। इसके अलावा दिस इज़ मोर देन इनफ अंडर द इन्वायरमेंट, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कौन कौन से आज का जो चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कौन कौन से फेस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इंटेंसिव फार्मिंग है, लैंड डिग्रेडेशन है, न्यूक्लियर इश्यूज़ हैं, ओवर पॉपुलेशन, ओजोन डिप्लीशन, पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन। ये सारे के सारे अपकमिंग एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं या चैलेंजेस हैं जो हम सब फेस कर रहे हैं और इनको ही हमने जो है रिड्यूस करना है, ठीक है जी। सो क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंटेंसिव फार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, न्यूक्लियर इश्यूज़, ओवर पॉपुलेशन, ओजोन डिप्लीशन, पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन, ये आजकल के अपकमिंग, इसमें से भी क्वेश्चन आया था कि ऑड वन आउट निकालना है कि अपकमिंग जो आजकल हम फेस नहीं कर रहे हैं चैलेंज, जो मतलब ख़त्म हो चुका है, चैलेंज को हमने मीट कर लिया है, ठीक है जी, जो हम फेस नहीं कर रहे हैं वो आप बताइए इस ऑप्शन से कौन सा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, ठीक है जी। और अगर हम एक और नोट इसमें से, इसी टॉपिक में से एक इम्पॉर्टेंट नोट लेके आई हूँ इन इश्यूज़ में से, कि एक इन नोट है कि ये इश्यूज़ जो है वो दो तरह से उसका बेस है। कुछ इश्यूज़ जो हैं इनमें से माइक्रो लेवल पे हैं, ठीक है जी, कुछ इश्यूज़ इनमें से मैक्रो लेवल पे हैं और कुछ इश्यूज़ इसमें से जो है वो लोकल लेवल या फिर माइक्रो लेवल पे है। तो फॉर एग्जांपल मैं आप यहाँ पे मैंने आपको नोट दिया है मैक्रो लेवल पे, जैसे सोइल इरोजन है, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन है, डिफॉरेस्टेशन है, लैक ऑफ वाटर, एनर्जी क्राइसिस एंड रिलेटेड इश्यूज़। ये सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं, सारी ही कंट्रीज़, पूरा वर्ल्ड इन इश्यूज़ से जो है वो जूझ रहा है।
ठीक है, ये सबके लिए चैलेंज बने हुए हैं मैक्रो लेवल पे। लेकिन जो माइक्रो लेवल इश्यूज़ हैं, जो माइक्रो लेवल पे हैं या लोकल लेवल पे हैं या एक स्पेसिफिक लेवल मतलब एक कंट्री के लेवल पे हैं, पर्टिकुलर कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, वो कौन कौन से हैं? पुअर हेल्थ या सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, इनएडिक्वेट हाउसिंग है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ये जो है वो माइक्रो लेवल के ऊपर जो है एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं। कंट्री टू कंट्री ये जो है वो चेंज होती रहती है, तो ये स्पेसिफिक होते हैं। और मैक्रो वाले जो है वो जनरल होते हैं, सारी कंट्रीज़ जो है उसको फेस करती हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होते हैं? ये कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं कि किस तरह से हम एनवायरमेंट को जो है वो साफ़ और सुथरा रख सकते हैं। एनवायरमेंटल एथिक्स में ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इन्वायरमेंट को किस तरह से सिक्योर करके रख सकते हैं। सो वी हैव लव एंड ऑनर द अर्थ सिंस इट हैज़ ब्लेस्ड अस विद द लाइफ एंड गवर्न्स आवर सर्वाइवल। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा एथिकल एक क्राइटेरिया है कि हम जिस मदर अर्थ के ऊपर रह रहे हैं उसको हर तरह से जो है वो सेव करें। पहला एथिक हमारा। दूसरा एथिक क्या है? वी शुड कीप ईच डे सेक्रेड टू अर्थ एंड सेलिब्रेट द टर्निंग ऑफ इट्स सीजन्स। हमें अर्थ के हर सीजन्स के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना हमें आना चाहिए। सीज़न टू सीज़न जो है हमें अपने एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो है इम्प्रूव करनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। वी शुड नॉट होल्ड आवरसेल्व्स अबव अदर लिविंग थिंग्स एंड हैव नो राइट टू ड्राइव देम टू एक्सटिंक्शन। और हमें ये नहीं करना कि हम अपने फ़ायदे के लिए, जैसे अब फॉर एग्जांपल इसका हम थर्ड पॉइंट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एनिमल हंटिंग होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हंटर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लायन को मार दिया, टाइगर को मार दिया, डियर्स को मार दिया, ठीक है जी, एंटीलॉप्स को मार दिया, अपना एक शौक पूरा करने के लिए, पैशन पूरा करने के लिए, या फिर वैसे ही उनकी तस्करी करने के लिए, मतलब उनको मारकर उनकी खाल बेचने के लिए या उनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स बेचने के लिए, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है स्वेटर्स के लिए या मैट्स के लिए या कार्डिगन्स के लिए यूज़ होते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है जी। हमें वी शुड नॉट बी मीन टू ओनली आर इंटरेस्ट, वी शुड बी वेरी वेरी general and kind hearted towards each and every animal and towards each and every creature on the earth। ठीक है जी, हमें उनको कोई भी एक्सटिंक्शन या कोई भी उसको हार्म नहीं पहुंचाना है। वी शुड बी ग्रेटफुल टू ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच नरिश अस बाय गिविंग फूड। हमें मतलब हर तरह से इन्वायरमेंट को सिक्योर करना है। ठीक है जी, ये हमारे एनवायरमेंटल एथिक्स है, हमारे इन्वायरमेंटल कह सकते हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिससे हम इन्वायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। और ये सबको ही निभानी चाहिए, किसी एक पर्सन का काम नहीं है, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है, ये एथिक्स में ही आ जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट को आज के लिए प्लस आने वाले जनरेशन्स के लिए जो है सिक्योर करके रखते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते जो इन्वायरमेंट को आज भी डिप्लीट करें और आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए तो बिल्कुल ही डिप्लीट कर दे। ऐसी एक्टिविटीज़ कोई नहीं करना। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करना है, इन्वायरमेंट को सिक्योर करके रखना है, जो है इन्वायरमेंट को हेल्दी करना है, इन्वायरमेंटल को जो एक्टिविटीज़ अपनी इस तरह से करनी कि इन्वायरमेंट हेल्दी बन सके, ताकि आज की जनरेशन्स जो हैं वो भी जो है सर्वाइव कर पाएँ हेल्दी इन्वायरमेंट में, और हमसे बाद जो आने वाले जनरेशन्स हैं उनके लिए भी हम अच्छा और क्लीन और बिल्कुल प्योर इन्वायरमेंट छोड़ करके जाएँ। तो ये सब चीज़ें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सो इट इज़ द आइडिया दैट ह्यूमन सोसाइटीज़ मस्ट लिव एंड मीट देयर नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स। हमें अपने लिए ऐसी मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है कुछ भी नहीं करना, इन्वायरमेंट को कोई ऐसा डिप्लीट नहीं करना कि आज हम अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं, आने वाले जनरेशन के बारे में सोचते नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। सो हमें पूरा का पूरा अपनी नीड्स भी मीट करनी है। अपनी नीड्स को मीट करते करते ये भी हमने मद्देनज़र रखना है कि आगे जनरेशन्स भी जो हैं उनको भी जो है इन्वायरमेंट इस तरह से हेल्दी ही मिले। ठीक है जी। सो द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्रुटलैंड रिपोर्ट इन 1987। ठीक है जी। वर्ल्ड्स कमीशन ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फर्स्ट जो है वो फर्स्ट टाइम ये जो है टर्म डेवलप हुई थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसलिए मैं इसको अंडरलाइन किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1987 में। स्पेसिफिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी सो दैट इट कैन एग्जिस्ट इन द लॉन्ग टर्म्स। दिस मेक्स टेकिंग इन टू द अकाउंट बोथ एंड इम्पेरेटिव्स प्रेजेंट एंड दोज ऑफ फ्यूचर्स सच एज द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज और सोशल इकोनॉमिक इक्विटी। मतलब अपने लिए भी अपनी ज़रूरत को भी पूरा करें इन्वायरमेंट से,
और आने वाले जनरेशन की भी ज़रूरतों को जो है वो पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें। ठीक है जी, कि हमने यूज़ कर लिया इन्वायरमेंट तो हमने आगे के लिए छोड़ना ही नहीं है, वो चीज़ नहीं होती। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है यही जो है एक कंसेप्ट आता है। ठीक है जी, सो ये सब चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में। और लास्ट में क्या रह गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीचर्स रोल इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। कि अब जब इन्वायरमेंटल एजुकेशन को टीचिंग लर्निंग के साथ कोलैबोरेट करें तो क्या उसके जो है रिजल्ट्स निकल करके आते हैं। कि टीचर्स रोल इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कि टीचर को क्या करना चाहिए। टीचर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, टू अराउज द चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन द इन्वायरमेंटल एजुकेशन, टू रेज दी चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स। मतलब इन टीचर को इन्वायरमेंटल या ईवीएस पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन देते हैं, उनको इंटरेस्टिंग वे से जो है स्टूडेंट्स को ये एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और उनको प्रैक्टिकलिटी में जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की इंस्पिरेशन देनी चाहिए। दूसरा क्या है, डिस्कस दी अप्रोच टू प्रॉब्लम्स और टॉपिक्स। ठीक है जी, सो इन्वायरमेंटल की जो चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको भी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। टू अरेंज विजिट्स, ठीक है जी, डिफरेंट फील्ड ट्रिप्स हैं, एक्सकर्शंस हैं, उसमें जो है जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या फिर फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, मतलब फॉरेस्ट एरियाज नहीं, मतलब जैसे डिफरेंट जो हैं प्रिजर्वेशंस जो हैं एरियाज़ हैं उनमें लेके जाके, ठीक है जी, इवन कि जूज़ में लेके जाके एनिमल्स को या प्लांट्स को दिखा करके इन्वायरमेंट के बारे में शिक्षा देनी चाहिए। टू प्रोवाइड मटेरियल्स नीडेड फॉर द प्रैक्टिकल वर्क, टू अरेंज फॉर विजिटिंग स्पीकर्स, ठीक है जी, टू इनिशिएट एंड डेवलप डिस्कशंस एंड डिबेट्स एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर डिस्प्लेज एंड एग्जीबिशंस फॉर द वर्क कैरिड आउट। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है एज अ टीचर करनी चाहिए। किसके लिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, किसको, लर्नर्स को, ऑल ओवर, राइट। सो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टीचर। लास्ट में अब क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान से देखिए इसको। ये क्वेश्चन जो ये मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बता के जो है बना के बताया हुआ है, इस पर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, इसको ध्यान से पढ़ें कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन को डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग में या डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन में किस तरह से हम सिखाते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स आप देख रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन है। अब इन्वायरमेंटल एजुकेशन का कौन सा एस्पेक्ट कहाँ पे हम सिखाते हैं, कौन से लेवल पे कौन सा एस्पेक्ट चलता है साइमल्टेनियसली, वो मैं आपको बता रही हूँ। प्राइमरी एजुकेशन में छोटे लेवल पे सिर्फ और सिर्फ हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है जी, प्राइमरी लेवल पे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या करते हैं, अप टू 5th 6th तक क्या कर सकते हैं हम, उनको इन्वायरमेंटल एजुकेशन के जो है तहत उनको नॉलेज दे सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं उनके माइंड्स में कि इन्वायरमेंट हमारे लिए क्या है, उसको कैसे जो है वो सिक्योर करके रखना है, ये सब चीज़ें उनको सिखा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकलिटीज़ नहीं उनको सिखा सकते कि किस तरह से क्या करना है। ठीक है, मतलब अभी सिर्फ नॉलेज दे सकते हैं प्राइमरी लेवल पे। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी लेवल पे क्या है, रेलिवेंस फॉर रियल लाइफ सिचुएशंस ऑफ एनवायरमेंट अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे प्रॉपर उसकी जो भी नॉलेज हम दे रहे हैं उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आती है स्टूडेंट्स के अंदर। अब वो जागरूक हो जाते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को या रियल लाइफ सिचुएशंस को कोलैबोरेट करके जो है उसको पढ़ते हैं और वो जागरूक हो जाते हैं कि इन्वायरमेंट किस तरह से, वाकई इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, अंडरस्टैंड करते हैं सब चीज़ें, कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्लैरिटी असली जो है वो सेकेंडरी लेवल पे आती है। नेक्स्ट क्या है, हायर सेकेंडरी लेवल। यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे वो प्रॉपर एक्टिविटीज़ करना शुरू हो जाते हैं स्टूडेंट्स और लर्नर्स। पेड़ लगाना शुरू हो जाते हैं, सीड्स बोना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी, जैसे सफाई अभियान चलते हैं स्कूल्स में, ठीक है जी, सो वो सब करना शुरू हो जाते हैं, अपने इन्वायरमेंट को प्रैक्टिकली क्लीन रखना शुरू हो जाते हैं। ये सब चीज़ें मतलब हाउ टू कंजर्व द नेचुरल इन्वायरमेंट वो प्रैक्टिकलिटी में वो करते हैं। किस लेवल के ऊपर, हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल के ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, बिल्कुल पीक लेवल का कौन सा होता है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। वहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट का के साथ साथ हम उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेट करके ये सिखाते हैं कि किस तरह से हमने कोई भी एक्टिविटी करनी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाने के लिए, कि जिससे हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें और आने वाले जनरेशन्स को की ज़रूरतों को भी ध्यान रखते हुए इन्वायरमेंट को डिप्लीट ना करें। ये सब प्रैक्टिकलिटीज़ हम सिखाते हैं हायर लेवल के ऊपर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। सो ये कौन सी एक्टिविटी, कौन सा लेवल जो है किस एक्टिविटी को सिखाता है, किस तरह से चलता है, ये मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है जी। सो इस तरह से क्वेश्चन भी आया था, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर एक चार्ट बना के दिखा दिया, ठीक है जी। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का लेक्चर वैल्यू एजुकेशन में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में समझाया था, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटल मिला के हमारा वैल्यू एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन कंप्लीट हो गया डिटेल में, ठीक है जी।
सो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करें, ठीक है जी। बहुत सारी जानकारी आपको हम देते आ रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। कोई आपको नोट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है यूजीसी के लिए, कोई आपको एक्स्ट्रा मटेरियल या ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस लेने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज़ टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर एंड मोर देन इनफ कि सिलेबस का ईच एंड एवरी पार्ट हम कवर करते हैं, कोई भी पार्ट छोड़ते नहीं हैं और हर एक चीज़ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है ताकि आप रोज़ के रोज़ जो है वीडियो को सुन के अपनी जो है वो स्टडी करते रहें। सो ये एक कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस है, 100% कंप्लीट कोचिंग्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इस चैनल के थ्रू। सो ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा चैरिटेबल सोशल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ईच एंड एवरी कोर्स इज कम्प्लीटली 100% फ्री थ्रू आउट इंडिया। ठीक है जी, लाइक करें, इस चैनल को शेयर करें, नीडी पर्सनस तक जो है पहुंचाएं, फ्लरिश करें ताकि हर एक स्टूडेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन ले सके कम्प्लीटली। और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। शेयर करें, लाइक करें, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कुछ भी करें, मतलब ज़रूर इस चैनल को जो है वो आप एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फ्लरिश करें, ठीक है जी, ताकि हमें भी मोटिवेशन लेवल मिलती रहे और हम हर एक तरह की तैयारी आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे कराते रहे फुल फ्लेज विदाउट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। So thank you so much for now. God bless you all and stay tuned for the next video.